Jai Hind friends, welcome to this initiative. Welcome to the current affairs session by me, Anshum Verma. This session is helpful for all UPSC based exam. That includes your NDA, CDS, AFCAT, CAPF for 2021. So soon guys, I will be introducing you a strategy video how to prepare for CDS 2021. Very soon you can clear all your doubts in that video. So for that you have to subscribe to my Telegram channel, which is given in the description box. So let us start today's video. This is me guys. My name is Anshum Verma. I come from a defense background. These are my credentials. I have qualified UGC NET JRF exam. I already have a teaching experience of 10 years and I have myself qualified various government exams including CDS, and I have appeared for CDS 7 times and got recommended twice. So guys, this is my channel Anshum Until the Uniform. Before we proceed, I just request you to just subscribe to this channel and also share this channel with your friends. Also give me some likes on this video and do not forget to press the bell icon so that every time I launch a new video, you are notified with this bell icon. So for any further queries, you can WhatsApp me on this number, as well as you can join my Telegram channel from the link which is given in the description box of this video. Okay, so these are the courses that I will be helping you guys. I will be covering your complete general studies portion. Okay, the complete general studies portion will be taken care by me for written exam, as well as for SSB. I will be launching a separate batch courses for everyone. We will be having soon some free sessions as well, as soon as I hit some 100,000 subscribers, or not 100,000 but 1,000 subscribers initially, so that we can start the live classes on YouTube as well, regular classes. So I request everyone to share this video as number of time as you can, and you can subscribe this channel from as many account you can. So guys, the complete GS portion will be covered by me. That includes the current affairs, then polity, geography, economics, history, static GK for AFCAT and INET exams like that. So I will be dealing with your GS portion for written exam as well as SSB portion. Okay, so guys, what will be the benefits of my course? What will you be getting in my courses, guys? First of all, structured courses, completion of courses, then regular classes that I will be taking once you subscribe to my batches. Then I will be also giving you some study materials with some free revision classes before the time, before you appear in the exam. Now, most of the sessions will be recorded, especially the current affairs session will be recorded. So even if you miss those sessions, so you can watch them later on. Then I will be providing you some personal evaluation as well if you are with me for SSB. So for SSB guys, I will be personally evaluating your complete psych as well as your interview technique. Okay, I will be providing you some mock interviews as well. I will review them, and yes, before your SSB, I will be doing some mock interviews with you. So it will include TAT, VAT, SRTs, WATs, okay, SDs. Everything will be worked upon by me on this channel. Then you will be having some personalized doubt clearing session, lifetime support when you join with me. So I will be helping you throughout your lifetime till the time you clear your exam. Then guys, all of you those who are in touch with me, you know that I have a very unique way of explaining things. That is, I will be explaining things in a very humorous manner. So it will help you to retain the things for a longer period of time. So let us start today's class. So guys, right now I am covering the current affairs for the month of August. Actually, I am in a continued progression. मैं स्टार्टिंग से जैन ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स को कवर कर रहा हूं, तो मैं फटाफट इन सेशंस को अगस्त तक अभी कवर कर देना चाह रहा हूं, और बहुत जल्द आपके लिए मैं सितंबर का करंट अफेयर भी शुरू करने वाला हूं। सितंबर को भी मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं, तो मैं जो अपने नोट्स बनाता हूं वो हिंदू, उसमें हिंदू के आपको न्यूज़पेपर से नोट्स मिलेंगे, इंडियन एक्सप्रेस से मिलेंगे, जो कि 2 इंपॉर्टेंट पेपर्स माने जाते हैं यूपीएससी एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। देन आपको ऑनलाइन कंटेंट जितना भी रिक्वायर्ड है, अननेसेसरी कंटेंट नहीं गाइस, जितना रिक्वायर्ड है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ऑफलाइन मैगजीन से जितना भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आऊंगा। देन अलॉन्ग विद दैट आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू सम पीडीएफ्स एज वेल। इन सेशंस का पीडीएफ आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो।
पीडीएफ के साथ साथ जो कि गवर्नमेंट सोर्सेस है जैसे पीआईबी, देन द ऑल इंडिया न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो, इसके जो डिबेट्स है, राज्यसभा टीवी के डिबेट्स है, उन सबको भी मैं फॉलो करता हूँ और उन सब से आपको ये आर्टिकल्स प्रेजेंट करता हूँ, ये टॉपिक्स प्रेजेंट करता हूँ। चलिए गाइस शुरू करते हैं। वैसे these are the topics which we have to cover. This is the 6th part of this video. I already have taken some videos on these topics for the month of August. So जिसने भी अभी तक ये नहीं देखा है, do watch all the videos. The link of the videos are given in the description box. So today we will be dealing with government schemes, and very soon I will be bringing environment session for you and a miscellaneous session. Okay, that includes sports, awards, appointments, art and culture, days and dates, reports, indices, books and authors, places and news, etc. Everything will be covered by me. This miscellaneous section is very much important for the factual exams like FCAT, NDA, etc. By the way, right now I'm recording this video on 27th of November. However, this FCAT notification is almost out. It will be, the forms will be, you can fill the form. The registration form will open by 1st of December. So I request every one of you who are eligible for the FCAT paper, do fill this form from in the first week itself, so to avoid any sort of rush in the later on. कई बार ऐसा होता है कि आप सेंटर्स एलोकेशन में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, जो रिक्वायर्ड सेंटर्स की प्रेफरेंसेस है वो फुल हो जाती है बिकॉज मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई. सो आई वेलकम एवरीवन ऑन दिस गवर्नमेंट स्कीम. गाइस, गवर्नमेंट स्कीम एक ऐसा एरिया है जहां से आप क्वेश्चंस डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो. यहाँ से क्वेश्चंस गारंटेड है. लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे. 1 से 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कवर करने ही होंगे. सो गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ना कैसे है मैं आपको वो बता देता हूँ. सबसे पहले मैं आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको ये पता होना चाहिए. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क. सबसे पहले तो फुल फॉर्म से कई बार स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पेशली एग्जाम्स लाइक एनडीए, एफकैट. फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार सीडीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. या दूसरे आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी एंड दे विल आस्क यू टू टिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स दिस गवर्नमेंट स्कीम. या कई बार उनके डेट्स या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन स्कीम से आ जाते हैं. ठीक है. या स्ट्रेट अवे अगर आप देखोगे उनके ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन एक गवर्नमेंट स्कीम दे देंगे और सिंपली पूछेंगे कि ये गवर्नमेंट स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन चारों में से क्या ऑप्शन है. ठीक है. सो इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अपने गवर्नमेंट स्कीम्स को तैयार करना है. अब किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को जब आप पकड़ते हैं तो सब कुछ नहीं पढ़ना उस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आप A to Z पढ़ने लग गए. नो गाइस, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच. किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ने के लिए आपको 3 ब्रॉडर चीजें निकालनी है. नंबर 1, उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई ये स्कीम है क्या, करती क्या है. दूसरा निकालना है भाई इस स्कीम का बेनिफिशियरी कौन है, हु इज द बेनिफिशियरी, यानी इससे बेनिफिट कौन ले रहा है. ठीक है. और नंबर 3, उसके कुछ सेलिएंट फीचर. सेलिएंट फीचर मतलब वो स्कीम्स अप्लाई कैसे हो रही है. सो ये 1, 2 and 3 ये 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ते हुए, समझते हुए. कुछ गिनी चुनी बातों का आपको ध्यान रखना होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए अगस्त मंथ की जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ. ठीक है. अगेन गाइस, इसको ये मत सोचिएगा कि सर अगस्त मंथ में या कितने टाइम का करंट अफेयर्स हमें, कितने टाइम की गवर्नमेंट स्कीम्स हमें कवर करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप आज भी सुनेंगे जैसे जनधन जैसी योजना, जनधन योजना हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, स्वच्छ भारत अभियान. ठीक है, अभियान. या मेक इन इंडिया. सो ऑल दीज स्कीम्स गाइस, ऑल दीज स्कीम्स, आप कहोगे क्या सर इनका जो इनका ये तो स्कीम बहुत पुरानी है, तो क्या सर इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. मैं अगेन यहाँ पर आंसर होगा यस गाइस. सो गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ते समय आप ये मत देखिए कि वो 1 साल के टाइम पीरियड में लॉन्च हुई स्कीम है. ऑब्वियसली जो 1 साल के टाइम पीरियड में लॉन्च हुई जो स्कीम्स है, जो न्यू स्कीम्स है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट कुछ ऐसी पुरानी स्कीम्स भी हैं जो कि जिनका आज के टाइम में रेलेवेंस बहुत ज्यादा है. जैसे ये उसके एग्जांपल्स कुछ मैंने आपको यहाँ दिए. ठीक है. ये सारी स्कीम्स है तो पुरानी. फॉर एग्जांपल, ये 2014 में लॉन्च हुई, ये भी 2014 में लॉन्च हुई. मेक इन इंडिया 2015 में लॉन्च हुई.
इतनी पुरानी स्कीम्स है बट इनका रेलेवेंस आज भी हमारे देश में है, बिकॉज आज भी इन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन जारी है। जैसे एक बहुत ही ओल्ड स्कीम के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, मनरेगा। ठीक है, ये भी इतनी पुरानी स्कीम है जिसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना गया, इसके नाम कितनी बार चेंज हुए। नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हर साल ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। ठीक है, सो इस एस्पेक्ट में हम गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ेंगे, जिसके बारे में बहुत ज्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, वो ऑटोमेटिकली वो स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं गाइस, बट शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं हम एक स्टेट बेस्ड स्कीम से। अगर स्टेट बेस्ड स्कीम में बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको उतरने की जरूरत नहीं है। कई बार स्ट्रेट अवे कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो कि अक्सर न्यूज गैदर करती है और तब पूछ ली जाती है। सो हाउएवर अभी जो फिलहाल कांग्रेस की सरकार है वो बहुत गिने चुने स्टेट्स में ही है, टू बी प्रिसाइज सिर्फ 3 स्टेट्स में है। उसमें राजस्थान की एक गवर्नमेंट स्कीम है, उन्होंने लॉन्च करा है रसोई योजना। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि रसोई योजना लॉन्च किसने करी है, तो याद करने के लिए रसोई राजस्थान RR, आप अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हो। अब ये रसोई योजना नाम ही आपको बता रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, सबसे पहले इट इज लॉन्च्ड इन द अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट with effect from 20th of August. The necessary instructions in this regard have already been issued by the government. Now, what are the details of this scheme? The scheme is named after the former Prime Minister of India, the Indira Gandhi. ठीक है, former Prime Minister of India Indira Gandhi, and it is meant to provide the poor with the quality of nutritious food at a very low price at ₹8. Now, for example, guys, 8 रुपए में आपको भरपेट खाना मिलेगा इस इंदिरा रसोई योजना में। नाउ आपने ऐसे दिल्ली में भी कई ऐसे वेंचर्स देखे होंगे, जैसे साउथ का तमिलनाडु का मॉडल ये सबसे फेमस हुआ था। वहां पर अम्मा कैंटीन नाम से जयललिता जी ने शुरू करा था। बट वही चीज अगर आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली से हैं, तो मैंने दिल्ली का आपको एग्जांपल दूंगा। जन आहार नाम के ऐसे स्टॉल्स होते हैं जो ज्यादातर पब्लिक प्लेसेस पर, रेलवे स्टेशन पर, हॉस्पिटल्स के आगे, ऐसी जगहों पर आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आई गेस दिल्ली में जो रेट है, जो मैंने बोर्ड पर देखा है, वो 15 रुपए है। सो ये उससे भी लगभग हाफ अ प्राइस में आपको न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा। सो अगेन द पुअर इन दैट रीजन विल डायरेक्टली बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस। सो इसका टोटल एक्सपेंडिचर, अब थोड़े बहुत सेलिएंट फीचर्स हैं, बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। 100 करोड़ पर ईयर इसमें लगेगा। दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड विद द स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस, ट्रांसपेरेंसी, public participation, so that it can involve more people in the lines of community development. So the government plans to establish this as a model scheme for the country. Now, इसको मॉडल स्कीम के तौर पर यानी पूरे देश भर में लागू करने के लिए इस पर प्लान भी चल रहा है। सो दैट्स इट, इस स्कीम में बस इतना ही। बस आपको ये याद रखना है किस स्टेट ने लॉन्च करी, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रिशियस क्वालिटी फूड एट जस्ट ₹8। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर और चीजें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ गाइस, एक चीज आपको मैं यहाँ पर आपका ध्यान लेना चाहूंगा कि सीडीएस एग्जाम में, या इनफैक्ट किसी भी डिफेंस एग्जाम में, या किसी भी यूपीएससी बेस्ड एग्जाम में, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या छोड़ना है, या दूसरे शब्दों में बोलूं कितना पढ़ना है। व्हाट इज द क्वालिटी दैट यू नीडेड। ठीक है, सो क्वालिटी कितनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन दुनिया जहान का कंटेंट मिल जाएगा, बट क्या इफेक्टिव पढ़ना है। अननेसेसरी क्वेश्चंस के फॉर्म में वीडियोस मिल जाएंगे, वो सब आप फॉलो कर सकते हो विद इंटेंट कि अगर आपका कनेक्ट बन रहा है टीचर के साथ। बट अगेन आपको कंटेंट, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट पे भी ध्यान देना होगा गाइस। सिर्फ क्वांटिटी पे मत जाइए कि ये टीचर इतने क्वेश्चन करा देता है, 1000 मैराथन वीडियोस चल रही है। मैराथन वीडियोस का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले तो इतना अटेंशन एक बार में किसी बच्चे का रहता नहीं है। ठीक है, कि आप उतने लंबे लंबे वीडियोस देख रहे हो, क्वेश्चंस फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चंस करते जा रहे हो। उन क्वेश्चंस का फायदा तब होगा गाइस जब आपके पास कुछ बेसिक कंटेंट हो, तब आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट स्कीम है हमारी ग्राम उदय विकास योजना। सो MSME Ministry has given the approval to start a program for the benefit and the welfare of the artisans involved in manufacturing of अगरबत्ती। So guys, नाम से ही आपको पता लग रहा है ग्राम उदय,
यानी विलेजेस का उदय, विलेजेस को आप एम्पावर्ड कर रहे हो, गांव को एम्पावर कर रहे हो। सो ग्राम उदय विकास योजना, ठीक है। सो दिस is launched first of all by MSME, Micro Small Medium Enterprise Ministry. It has been recently started as a model, as a pilot project, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में इसमें पायलट प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा है। अगर आप इसमें जो अभी भी चल रहे हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहूंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। ये उसी मॉडल पर बेसिकली चल रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं गाइस, आप मान के चलिए गांव की कुछ महिलाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल कोट करूं, अगर घर में भी आपको भले ही आपकी मॉम वर्किंग ना हो, मैं उन फैमिलीज की बात कर रहा हूं जहां पर आपकी मॉम वर्किंग नहीं है, शी इज अ होम मेकर। नाउ इन सच फैमिली, अगर आप देखोगे ज्यादातर, या जितने भी आपने मंडियों में देखा होगा या बाहर जाके देखा होगा, जो जो आंटियां होती है, दे आर वेरी थ्रिफ्ट, दे आर थ्रिफ्टनेस, उनके अंदर एक थ्रिफ्टीनेस होती है, यानी दे आर थ्रिफ्टी। व्हाट डज दिस थ्रिफ्टी मीन्स, यानी बचा कर पैसे को कंजूसी के साथ वो काम करती है, ठीक है। और उनकी सेविंग हैबिट बहुत ज्यादा होती है। सो अगेन दिस इज एप्लीकेबल नॉट ओनली जस्ट इन द अर्बन सेंटर्स बट ऑल्सो इन विलेजेस। तो इमेजिन कीजिए, विलेजेस में तो महिलाओं का काम करना अल्टीमेटली इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट फिर भी अगर हम देखें तो इतने सारी अगर महिलाएं मिलकर अपनी अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करें, सेविंग्स को जोड़कर एक छोटा सा ऐसा सेटअप बना दे, और उसमें बैंक्स को भी इन्वॉल्व कर दिया जाए, बैंक्स भी इनको थोड़ा सा लोन प्रोवाइड कर दे, फाइनेंशियल सपोर्ट कर दे, तो आप देखोगे ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करा जा सकता है, या अगर गांधी जी की भाषा में बोले तो कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करा जा सकता है। कॉटेज इंडस्ट्री में क्या क्या आ गया, लिज्जत पापड़ जैसे बना लिया। लिज्जत पापड़ बाय द वे एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है SHG का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा DD1 पर या बहुत सारे चैनल्स पर ऐड आती है लिज्जत पापड़, ठीक है। तो ये लिज्जत पापड़ गाइस आज के टाइम में इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि दैट इट इज अवेलेबल इन अब्रॉड the countries. One of my friend from Australia has clicked a photo of this papad from a supermarket and sent me. ये देख भाई, यहाँ पर ये सब भी मिलता है। So अब ऐसे छोटे मोटे पिकल्स बना लिया, अचार बना लिया, अगरबत्ती बना ली, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना लिए जिसको वो बेच सकते हैं, ठीक है। उसको बेचने से होगा क्या, उनको बेचने से उनका एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है, एक बिजनेस मॉडल डेवलप होता है, और धीरे धीरे वो एम्पावर होते हैं। सो ये सब आपको बहुत सारे तरीके से हेल्प कर सकता है। यानी गांव के विकास, यानी गांव के लोगों का विकास होगा तो ऑब्वियसली गांव का भी विकास होगा। सो दैट मीन्स इट इज एप्ट इन जस्टिफाइंग द टाइटल ग्राम उदय विकास योजना। सो अगर हम इसकी स्कीम की बात करें, थोड़ा सा डिटेल्स में हम चले जाते हैं, बट जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेंज द कलर। सो एज पर द स्कीम, each targeted cluster of artisans will be supported with about 50 automatic अगरबत्ती मेकिंग मशीन्स। यानी हर किसी को सपोर्ट, देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए वो इनिशियल सपोर्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी मुझे अपने चैनल को शुरू करने में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आई जो मुझे बहुत कुछ सीखना था, बट आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे को हेल्प करी। दे हैव हेल्प मी टेक्निकली, दे हैव हेल्प मी मॉरली, और सपोर्ट तो मेरे को इतना बहुतों का मिला है, इतने सारे मैसेजेस आए हैं इन सपोर्ट। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो 50 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन से ये सपोर्ट मिलेगा, विच में 10 मिक्सिंग मशीन और ये सब इसमें दिया जाएगा। अगर आपको ये सब याद करने की जरूरत है नहीं, ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हेल्प करेगा। हावेवर, yes guys, one thing that I forgot to tell you in the beginning that ये गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने SSB में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, आपका GD डायरेक्टली इससे लिंक्ड होगा, इससे कितना कुछ आपने एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। GD दो क्लासेस मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर आप देखो मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो, अगर आप मेरे पॉलिटी और नेशनल इश्यूज की वीडियो, और गवर्नमेंट स्कीम्स की वीडियो, अगर आप ये 3 वीडियोस को, इन 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करके जाते हो SSB के लिए, तो गाइस आपको इतने सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे वहां पर एक्सप्लेन करने के लिए, चाहे वो GD हो, चाहे लेक्चरेट हो, चाहे अपने टैट के ऊपर, टैट में आप एडिशनल स्टोरियां लिखते रहते हो। व्हाई डोंट यू राइट सच स्टोरीज ऑन सच टॉपिक्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप, अगर वहां पर कोई वुमेन दिखा रही है तो वुमेन बहुत सैड है,
वुमेन के पास नौकरी नहीं है, उसने मेहनत करी, उसने नौकरी ले ली, टैट की स्टोरी खत्म। ये गाइस बहुत बेसिक स्टोरी है, फीकी स्टोरी है, हर दूसरी किताब में आपको ये स्टोरीज मिलेंगी और हर दूसरा बच्चा वो किताबें पढ़ रहा है। तो इस पिक्चर को ही अगर यहाँ पर एक पिक्चर देखो, अगर मैं इसी को ब्लर करके आपके सामने प्रेजेंट करूं तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये वो अगरबत्ती है। या ऐसी कोई महिला, कोई भी ऐसी पिक्चर में जहाँ पर सिंगल महिलाएं, रूरल बैकग्राउंड हो, आप ऐसा कुछ क्यों नहीं ऐड कर सकते? यहाँ पर इतना कुछ आपके सामने पॉइंट्स दिए हुए हैं, इतना कुछ मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, तो इतनी सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज यहाँ पर निकल के आती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन गवर्नमेंट स्कीम्स की अंडरस्टैंडिंग रखना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉलिटी एंड नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस और गवर्नमेंट स्कीम की ये जो 3 वीडियोस हैं, ये आपको डायरेक्टली एसएसबीज में हेल्प करेंगी। हाँ, अदर जगह ऑब्वियसली रिटर्न में भी करेंगी, क्योंकि रिटर्न में भी क्वेश्चंस आते हैं, बट वहां पर स्ट्रेट अवे ये 3 वीडियोस तो डेफिनेटली हेल्प करेंगी ही करेंगी। ठीक है, हावेवर उसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स है, जैसे एनवायरमेंट, आजकल वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन, इन सब से भी एसएसबी में टॉपिक्स आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो एनवायरमेंट के ऊपर ही होगी, वो मैं लेके आ रहा हूँ। सो इसके अंदर गाइस टोटल 200 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन्स, 40 मिक्सिंग मशीन्स विल बी प्रोवाइडेड टू द आर्टिसियन, यानी टोटल है ये। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC, ये जो एक PSU है, इट विल बी प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग ऑफ द आर्टिसियंस वर्किंग इन दिस एरिया विद इंफ्रास्ट्रक्चर। सो गाइस ट्रेनिंग भी सरकार दे रही है यहाँ पर। ठीक है, सो थोड़ा सा मैंने KYC के बारे में यहाँ पर ऐड करा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ सकते हो। इट इज गोइंग टू टाई अप विद द खादी इंस्टीट्यूशंस एंड अगरबत्ती मेकर्स इन द कंट्री हैविंग अ impeccable track record for providing work to the artisans and also raw materials for making agarbattis. What are the significance? The scheme is going to give a flip to the domestic agarbatti industry and also will reduce to overall import of the product and from the other countries. Now, apart from the artisans, it will get a steady flow of work with intervention of the government as well. And straight away, it will be hampering 500 एडिशनल जॉब्स विल बी क्रिएटेड। सो एक गांव में 500 नौकरियां अगर क्रिएट होती है, जिसमें छोटी मोटी पार्ट टाइम नौकरी भी है, तो गाइज ये हमारे इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमारे देश के यूथ को आप चैनलाइज कर सकते हो, लड़कियों को चैनलाइज करा जा सकता है, लड़कियां ये स्किल्स सीख सकती है, एंटरप्रेन्योर्स के स्किल्स सीख सकती है, बिजनेस कैसे, मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट MBA, जो मैनेजमेंट स्किल्स MBA वगैरह में सिखाए जाते हैं, तो गाइज वहां पर होता है किताबी ज्ञान, बट ये सारा ज्ञान जो मैनेजिंग स्किल्स होंगे, ये सब ज्ञान आप फॉर एग्जांपल आप जो स्कूल में, क्यों फौज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाले लोगों को पसंद करा जाता है, वहां पर फौज में गाइज गीकी बंदों को, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बंदों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करा जाता, टू बी ऑनेस्ट। बट अगर आप डाइवर्सिफाइड पर्सनैलिटी रखते हो, आपने इधर उधर बहुत सारे काम में एक्टिव पार्टिसिपेट करा हुआ है, तो ऐसी पर्सनैलिटीज उनको पसंद है, क्योंकि यही एक आर्मी ऑफिसर की लाइफ है। ही विल बी इन्वॉल्व इन अ डाइवर्सिफाइड रोल। उसको अपने मैनेजमेंट भी देखना है, उसको ऐसे कॉम्बैक्ट रोल्स भी देखने हैं, उसको अपने अकाउंट्स भी संभालने हैं यूनिट के, उसको अपने लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करना है। तो यही सब आप छोटे लेवल से सीखते हो गाइस। जब कॉलेज वॉलेज में आप फेस्ट कराते थे, कितनी सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें लगती थी, बट वो आपने कितने अच्छे से मैनेज करा है। ठीक है, तो वही मैनेजरियल स्किल्स यहाँ पर आप प्रोवाइड कराओगे, जिसकी वजह से जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। PM स्वनिधि स्कीम। नाउ गाइस, ये स्कीम मैंने लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स में ऐड करी थी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्कीम है। मैं इस पे कुछ स्टार्स मार के चल रहा हूँ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इस साल की स्कीम है, अभी कोविड टाइम्स में लॉन्च करी गई है और एक सक्सेसफुल स्कीम है। अब ये दोबारा से पढ़ाना क्यों पड़ रहा है मुझे, क्योंकि इसके कई नए डेटा सामने आए हैं। तो सबसे पहले मैं नए बच्चों को जो मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं ये PM स्वनिधि स्कीम है क्या। सो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अंडर द एम्बिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, so this scheme was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs. It aims at facilitating a collateral free working capital loan up to 10,000 for a year। यानी ऐसे लोग, ठीक है, सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च करी गई किसी और स्कीम अदर देन दिस
एनी अदर स्कीम, क्या आप मुझे नेम कर सकते हो? कैन यू नेम एनी अदर स्कीम? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। ठीक है, कितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं इन वीडियोस में मुझे पता लगेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस, जितने भी छोटे मोटे वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, उनको लगभग 10,000 रुपए तक का 1 साल का लोन दिया जाएगा, जिसमें अंदर लगभग 50 लाख ऐसे अर्बन वेंडर्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अर्बन, रूरल एरियाज इन सब में आ जाते हैं। नाउ गाइस, एक छोटी मोटी रेडी लगाने के लिए ये 10,000 रुपए तक की जो इन्वेस्टमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है स्ट्रीट वेंडर्स को, जहां पर उनको इनिशियल कैपिटल मिल जाता है और अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और जिसमें 1 साल का टेन्योर का लोन है, 10,000 रुपए 1 साल में चुकाने हैं आपको। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप दिन के 100 रुपए भी बचा लेते हैं लोन को देने के लिए, तो मंथ एंड में आपके पास 3,000 रुपए अपने लोन को चुकाने के लिए हो जाते हैं, सिर्फ 100 रुपए दिन के बचाने हैं। ठीक है, तो अगर 100 रुपए भी नहीं हो पा रहे, अगर 50 भी आप बचाएंगे, तो 1500 रुपए के हिसाब से भी आप 1 साल के अंदर अंदर ये लोन चुका सकते हैं। सो इफ लोन्स आर बीइंग पेड रेगुलरली, there will be a interest of subsidy of 7% per annum, and also a cashback of rupees 1200 per annum on the undertaking prescribed digital transaction and eligibility to enhance the next tranche of the loan which have also been provided. So इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज है गाइस। 7% की सब्सिडी भी मिलती है अगर आप लोन को पे कर देते हो, यानी 7%, 10,000 का 7% कितना हुआ? 700 रुपए का आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आपको और भी कई तरीके के इसमें मिल जाते हैं, जैसे 1200 रुपए पर एनम का आप एक कैशबैक भी आपको मिलेगा अगर आप टाइमली इसको लोन को चुका देते हो। तो बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से इसमें ये 1200 रुपए तब मिलेगा जब आप डिजिटली सारा काम करते हो। ठीक है, डिजिटली आप इन्वॉल्व हो जाते हो। ठीक है, तो उस केस में सरकार को ट्रैक करना, ट्रेस करना बहुत आसान हो जाता है, तो उसका बेनिफिट सरकार आपको प्रोवाइड करेगी। आपसे मेरा मतलब इन स्ट्रीट वेंडर से। ठीक है, सो गाइस, गवर्नमेंट स्कीम जैसा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही सिर्फ काम नहीं आएगा। ये टॉपिक की समझ आपको कई जिंदगियां सुधारने में हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा शख्स है जिसको मदद की जरूरत है, तो क्या पता आपकी ये नॉलेज उसको किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर पाए। ठीक है, सो एट टाइम दीज स्कीम्स हेल्प यू इन दिस वे। ओके, देन व्हाई दिस स्कीम केम इन न्यूज, मैं इसको दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूं गाइस? सो विद इन 41 days of the implementation of the scheme, the number of loan sanctions and the number of application received under PM Swanidhi scheme crossed almost almost the mark of 1 lakh to 5 lakh respectively from July 2. So जुलाई में ये लॉन्च करी और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोन, या कई किसी केस में ये 5 लाख लोन, 5 लाख रुपए के नहीं, 5 लाख लोन दिए जा चुके हैं सरकार के द्वारा इन जस्ट 41 days। सिर्फ 41 दिनों में इतनी ज्यादा सक्सेस स्कीम को मिली है। तो सोच के देखिए कि कितना ज्यादा कैपिटल डेफिसिट थे हमारे ऐसे छोटे वेंडर्स, जो कि वेट कर रहे थे ऐसे किसी सपोर्ट का। ठीक है, सो देयर बिजनेस वाज डिस्टर्बटेड ड्यू टू द सिचुएशन एंड दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू स्टार्ट एंड कंटिन्यू द बिजनेस। सो यू नो गाइस, everything is all over the news that how the lives are impacted during this COVID time. Okay, next is again an important initiative done by नीति आयोग. So guys, नीति आयोग को थोड़ा सा आप, बाय द वे, ये पीएम स्वनिधि स्कीम को मैं कहूंगा कि आप स्टार मार के रख लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आने के चांसेस इस सीएपीएफ में भी बहुत ज्यादा है गाइस। सो सीएपीएफ पीपल, पीएम स्वनिधि को बहुत अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना, उसके फैक्ट्स नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट, एम्पावरिंग ट्राइबल्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च। सो इसका एक डैशबोर्ड लॉन्च करा है, नीति आयोग की मैं बात कर रहा था गाइस। इसका फुल फॉर्म जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो फटाफट इसका फुल फॉर्म को नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देन इससे रिलेटेड कोई भी, मैं आपको बता दूं, नीति आयोग से रिलेटेड कोई इंडेक्स आ जाए, कोई रैंकिंग आ जाए, ठीक है, इंडेक्स हो, रैंकिंग हो, कोई रिपोर्ट हो, ठीक है,
कोई इसका कोई भी लॉन्च हो, ऐप हो, कुछ ऐसा डैशबोर्ड हो, टेक्निकल कुछ ऐसा एनहांसमेंट हो, आप नीति आयोग को रिलीजियसली फॉलो करना। यूपीएससी को नीति आयोग बहुत पसंद है। नीति आयोग के द्वारा लॉन्च करी गई चीजें यूपीएससी अक्सर पूछता है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखना। So this scheme has launched this online performance dashboard named as Empowering Tribals, Transforming India. नाम ही बता रहा है गाइज ये क्या करने वाला है। इट इज ट्रांसफॉर्मिंग द एम्पावरिंग द ट्राइबल्स, ठीक है, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नाउ दिस वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग सीईओ ड्यूरिंग द रिव्यू मीटिंग ऑफ द मिनिस्ट्री। अच्छा, एक नया करंट अफेयर गाइज, अपॉइंटमेंट्स। एनडीए के पेपर में ऐसे अपॉइंटमेंट्स बहुत आते हैं। Who is the present CEO of नीति आयोग? नीति आयोग का प्रेजेंट सीईओ कौन है? इसका चेयरपर्सन कौन है? एंड इसका वाइस चेयरपर्सन कौन है? जरा ये तीन बंदे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सीईओ नीति आयोग का प्रेजेंट कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है और चेयरमैन कौन है? ठीक है, अब इससे ज्यादा चीजें अब देख सकते हो यहाँ पर। डैशबोर्ड ये जो लॉन्च करा है मैंने अटैच कर दिया है यहाँ पर इमेज, आप देख सकते हो। अब मैं बता देता हूँ, इस इज अ इंटरैक्टिव डायनेमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट शोकेस द रियल टाइम डेटा एंड स्टेटस ऑफ द स्कीम्स एंड इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री व्हिच इज मेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नाउ गाइस, जो एसडीजी गोल्स है, टोटल कितने गोल्स है, हाउ मेनी गोल्स आर देयर यूनाइटेड नेशंस के, जरा मुझे बताइए। ये जितने भी एसडीजी गोल्स हैं उसके अंदर भी ट्राइबल पॉपुलेशन का एम्पावरमेंट के बारे में लिखा हुआ है। उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए जितनी भी ऑलरेडी स्कीम्स चल रही है ट्राइबल लोगों के लिए, वो सारी स्कीम रियल टाइम डेटा के साथ आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो आप उसमें स्टेटस चेक कर सकते हो, कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है, कैसे अप्रोच करना है, वो सारा डेटा आपको एक जगह मिल जाएगा। सो इट कैप्चर्स the performance of 5 scholarship schemes of the ministry, where every year about 30 lakh underprivileged STs beneficiaries are helped. तो इसमें ज्यादातर आपको स्कॉलरशिप स्कीम्स वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्कीम्स, द डिटेल्स ऑफ द ट्राइबल स्टूडेंट्स फ्रॉम वन स्टेट टू डिफरेंट स्टेट्स एंड ऑल्सो टू डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, ये पूरे उस तरीके से हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल द वेरियस इंपॉर्टेंट स्कीम्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रधानमंत्री वन धन योजना, मैंने इसको कराया था पास्ट मंथ में। सो इट इज अ मार्केट लिंक एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम स्ट्रेंथनिंग द ट्राइबल एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मैंने अभी आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था, व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो इट मेक्स देम द ट्राइबल प्रोड्यूसर कंपनीज एंड दिस इज मैनेज्ड बाय ट्राइफीड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राइफीड, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ठीक है, देन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कूल इज टू प्रोवाइड क्वालिटी मिडल एंड हाई लेवल ऑफ एजुकेशन टू एसटी स्टूडेंट्स टू द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री, and these are being set up by the grants provided under Article 275(1) of the Indian Constitution. So guys, the rights of the tribals are even protected under the Constitution of India. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर राइट्स प्रोटेक्टेड है 275। देन ट्राइबल फॉरेस्ट राइट, ट्राइबल हील्स एंड नॉलेज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सारी कुछ स्कीम्स है जो ऑलरेडी ट्राइबल्स के लिए चल रही है। इसके बाद गाइस अगला जो टॉपिक है हमारे सेंसस से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता था कि नई जनगणना होनी थी, बट इसको पोस्टपोन कर दिया गया है बिकॉज यू नो व्हाट आर द करंट सिनेरियो गोइंग ऑन। सो सेंसस, इसको भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट देख रहा हूं, आने वाले करंट एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको सेंसस के बारे में बता देता हूं पहले कि इंडियन सेंसस विच इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, गाइस, इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन एशिया और नॉट जस्ट इन दिस पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, बट इन द वर्ल्ड। इट इज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य प्रणाली की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है ये। देन दिस ईयर द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस वाज टू अपडेट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है। डोंट वरी, आगे इन टॉपिक्स को मैं दोबारा से कभी ना कभी कवर कर दूंगा, तो अभी के लिए आप गूगल कर लेना व्हाट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इट वाज शेड्यूल्ड नाउ व्हिच गॉट पोस्टपोन्ड ड्यू टू द करंट कोविड आउटब्रेक. So what is the Indian census in brief?
The Indian census is a decennial in nature, meaning it's an event which reoccurs every 10 years. So हर 10 साल में एक बार सेंसस होता है. जो सबसे पहला सेंसस हुआ था गाइस 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर पहला सेंसस हमारा कराया गया था. ठीक है, उसके बाद जो सेंसस हो चुका है 15 बार सेंसस कंडक्ट कराया जा चुका है. तो ये 16th टाइम सेंसस होना था 2020 में, बट सेंसस हो नहीं पाएगा तो 2021 में सेंसस रिलीज नहीं होगा. तो मोस्ट प्रोबेबली ये सेंसस आएगा 2022 तक. ठीक है, ये 21 के एंड में भी आ सकता है. सो द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, अब देखो ये स्टार्ट हुआ था 1772 में, बट 81 से ये कंप्लीट सेंसस हमारे देश का पहली बार करा गया. तो दो अलग अलग चीजें, कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ था और उसके बाद हर 10 साल में एक बार हो रहा है. ठीक है, नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द सेंसस डेसिनियली. ठीक है, 10 साल में एक बार कंडक्ट कौन करता है? द रजिस्ट्रार जनरल. ये पोस्ट है गाइस, रजिस्ट्रार जनरल होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है. ठीक है, ये और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ये करते हैं क्या? सेंसस को they conduct the census. However, the census are compiled by NSSO. डेटा कलेक्शन कौन करता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जरा किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. NSSO कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ठीक है, all the census since 1951 are being conducted under the 1948 census of India Act. यानी ये सारे सेंसस किस लॉ पर ये सेंसस करे जाते हैं? तो हमारे एक लीगल प्रोविजन है 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट. ठीक है, सो सबसे पहले इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि सबसे पहले जो होगा वो NPR होना था, बट वो भी हो नहीं पाया. NPR is a abbreviated form of National Population Register. It is a register of the usual resident of the country. ये सिटीजन नहीं, NPR बताता है कि हमारे देश में कौन कौन रहता है, रेजिडेंट है. So the register will contain the details about the individual which is collected at the local village, sub-town, sub-district, district, state, national level under the Citizenship Act of 1955 and the Citizenship Rule of 2003. सो NPR भी बहुत न्यूज में रहा था गाइस कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. क्रोनोलॉजी समझिए आप. ठीक है, अमित शाह पर मीम्स भी बने थे कि पहले NPR बनाया जाएगा, फिर CAA के नए अमेंडमेंट के जरिए बहुत कुछ पॉलिटिकल टसल चला था. ठीक है, ये साल की शुरुआत ही इसी पॉलिटिकल टसल से हुई थी हमारे देश में और साल का एंड भी लगभग एक प्रोटेस्ट में हो रहा है अभी, द फार्मर्स प्रोटेस्ट. फार्म लॉस को भी हम डिस्कस करेंगे गाइस, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है. अगस्त में ये फार्म लॉस नहीं आए थे. नेक्स्ट मंथ ये फार्म लॉस आने वाले हैं, तो सितंबर के करंट अफेयर में हम डिटेल में उन फार्म लॉस को क्या क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, दोनों बात करेंगे. ठीक है, अब दोनों चीजें होती है गाइस, आप किसी भी चीज को फुली सपोर्ट नहीं कर सकते, उसके प्रोज भी होते हैं, उसके कॉन्स भी होते हैं. जो नया लॉ बनाया है सरकार ने, ऑब्वियसली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स, बट टू एन एक्सटेंट. ऑब्वियसली देयर आर गुड नंबर ऑफ फार्मर्स हु आर अगेंस्ट इट, तो कुछ भी उसमें फ्लॉज भी होंगे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट लॉ मेकिंग इज. एक तराजू है, ये आपको बैलेंस करना पड़ता है कि कौन सी चीज कहाँ बैलेंस होगी. ठीक है, और कौन से लोग उस बैलेंस के कौन सी साइड है, वो प्रोज वाली साइड है, कॉन्स वाली साइड है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं. अभी आपको यू मस्ट बी वर्किंग विद द इमोशनल एस्पेक्ट. तो आप फौजी बनिए, ट्रू UPSC कैंडिडेट बनिए, आप किसी भी चीज को इमोशन से बाहर रख के एनालाइज कीजिए. ठीक है, अभी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बट हाउएवर वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स वेरी सून. सो एक फटाफट मैं डिफरेंस बता देता हूँ NPR और सेंसस के बीच में क्या है. द डेटा कलेक्शन प्रोसेस फॉर NPR एंड सेंसस विल बिगन एट द सेम टाइम. हाउएवर टू डेटाबेस आर नॉट सेम. NPR और सेंसस पर दोनों पर एक साथ कार्रवाई करी जाएगी, बट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. सेंसस कलेक्ट्स मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द सिटीजन to gauge the country's progress in the past decade. ठीक है, the census collects more detailed information of the citizen. एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करी जाएगी, हर चीज होगी इसमें. आपका एक्सपेंडिचर कितना, घर में कितने टीवी, बल्ब, फिर पंखे, गाड़ियां, जूते, ये सब तक इसमें कवर करा जाता है. एक डिटेल होता है. ठीक है,
it basically is to collect the data to see the country's progress. ठीक है, so it helps in monitoring the government's ongoing schemes and also helps the authority to plan for the future, whereas the NPR only contains a demographic information. NPR के अंदर सिर्फ population related information होगी कि आप हो, आपकी एक आइडेंटिटी है, मिस्टर एक्स एक बंदा है, मिस्टर एक्स यहाँ रहता है, ये गांव है, ये तहसील है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये ब्लॉक है, ये स्टेट है और ये कंट्री का पार्ट है. ठीक है, सो उसकी पॉपुलेशन वाइज डिटेल्स होंगी, बट सेंसस में कंप्लीट डिटेल्स होंगी. उसकी फैमिली इनकम क्या है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कौन कौन लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं गाइस, ये है particularly vulnerable tribal groups, PVTG. ठीक है, particularly vulnerable tribal groups. So what are these और why they are in news? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये है क्या. They are among vulnerable among the tribal groups. So guys, tribal लोग होते क्या हैं, पहले मैं आप ये जान लीजिए. ट्राइबल लोग कोई ऐसे लोग नहीं होते जो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं या गवार हैं, आप उनको ऐसे समझे. ट्राइबल लोग आर दोज पीपल हु आर लिविंग, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज लिटिल प्रिमिटिव. वो किस अंदाज में जीते हैं, वो सिंपल लाइफ रखते हैं, उनका बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम से कनेक्ट नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ट्राइबल लोग शहरों में भी रहते हैं, बट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका जो डायरेक्ट डिपेंडेंस है वो सीधा नेचर से है. ठीक है, और उसमें भी जो पर्टिकुलर वनरेबल यानी जो सबसे ज्यादा कंसर्न ट्राइबल ग्रुप है वो पीवीटीजी की कैटेगरी में आते हैं, यानी पर्टिकुलरली वनरेबल मतलब उनको खतरा है बहुत सारी चीजों से. ठीक है, सिर्फ नॉर्मल लोगों से नहीं, उनको हेल्थ को, उनके एजुकेशन को, उनको कल्चरल इम्पैक्ट को, इन सब चीजों से खतरा है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जैसे हमारे अंडमान एंड निकोबार का एग्जाम्पल लेता हूं, वहां पर ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स मिलेंगी आपको. वो इतने ज्यादा प्रिमिटिव है कई स्टांस में कि दे डोंट इवन वेयर क्लोथ्स. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट. उनके लिए फोन, लैपटॉप, ये पेन, टैबलेट जैसी चीजें तो अब दूर की बात है. दे डोंट इवन वेयर क्लोथ्स एंड दिस इज अ रियलिटी. एंड उनको ये नेशन जैसे कंसेप्ट, डेमोक्रेसी जैसे कंसेप्ट, ये सब भी नहीं पता. तो कई तो ऐसे भी ग्रुप है जैसे सेंटिनलीज, ये इतने प्रिमिटिव है, ये आज भी भाला वाला कैरी करते हैं. और जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, इन्होंने रिटेलिएट करा है एग्रेसिवली. दे आर हॉस्टाइल टू द आउटसाइडर्स. ठीक है, लास्ट ईयर एक न्यूज भी आई थी, एक अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरी वाज गोइंग देयर टू फॉर द टू प्रोवाइड देम द क्रिश्चियन नॉलेज, द नॉलेज ऑफ द बाइबल, बट यस ही वाज म्यूटिलेटेड, यानी उसको मार दिया गया था बुरी तरीके से. ठीक है, सो ये सब अक्सर न्यूज में रहता है. सो दे हैव डिक्लाइनिंग एंड स्टैग्नेंट पॉपुलेशन. सो टेक्निकली इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है. लो और आई वुड से जीरो लेवल ऑफ लिटरेसी. ठीक है, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी बहुत ही प्रिमिटिव तरीके से ये टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं. एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इनके लिए, कई लोगों के लिए तो करेंसी, मनी जैसी चीजें भी कुछ नहीं है. ठीक है, सो जनरली they inhabit the remote localities having the poor infrastructure and administrative support. तो इनके पास बहुत ज्यादा कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जंगलों में रहते हैं ये, कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं होता इनके लिए, कोई ऐसा कोई काम नहीं करता. सो इन 1973 में देवभर कमीशन ने एक पर्टिकुलरली इस ऐसे ग्रुप को क्रिएट करा जिसको बोला गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप एज अ सेपरेट कैटेगरी हु आर लेस डेवलप्ड अमंग द ट्राइबल ग्रुप. तो एक सेपरेट कमीशन किसमें लागू करा गया, देवभर कमीशन के द्वारा इनको डेजिग्नेट करा गया कि भाई ऐसा एक ग्रुप होगा. 1975 में क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड टू आइडेंटिफाई कि भाई किस को हम इसमें डालें और उनको मोस्ट वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी बोली जाए, जिसको पीवीटीजी का स्टेटस दिया गया. सो उस टाइम पर 52 ऐसे सच ग्रुप्स को डिक्लेयर करा गया. 1993 में 23 ऐसे और ऐड हुए. तो अभी जो टोटल संख्या है पीवीटीजी की हमारे देश में, वो ऐसी 75 ट्राइब्स है. इजी नंबर है, डायरेक्ट नंबर है. 75 ट्राइब्स पीवीटीजी की कैटेगरी में आती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा आपको मिलेंगी उड़ीसा में 13 और आंध्र प्रदेश में 12.
ये फैक्ट आपके रिटर्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में सीडीएस में ऐसे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, जब इनिशियल इनका शुरुआत हुआ था तो इनका इनिशियल नाम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप रखा गया था, पर 2006 में इसका नाम चेंज करके पीवीटीजी रख दिया गया। ठीक है, तो अब देख सकते हो गाइस, अब ये न्यूज में क्यों आया, सी ये इनके लोक नृत्य है, ये इनकी लोक वेशभूषा है। सो आपको लग रहा है कि हाउ हाउ प्रिमिटिव दे आर। ठीक है, ये सभ्यसाची का लहंगा नहीं पहना इन्होंने। ठीक है, एंड दे आर नॉट फ्लॉन्टिंग देयर सिक्स पैक्स एब्स और दे आर नॉट फ्लॉन्टिंग देयर लीन मसल मास। ठीक है, दे आर नेचुरल, दे हैव डेवलप्ड दिस बाय लिविंग दैट हार्टफुल लाइफ। कोई भी आपको इसमें ओबीज नहीं दिखेगा जो मोटा जा रहा है, पेट निकल रहा है, थाई भारी है, हिप्स भारी है। ठीक है, दे आर हार्ड वर्किंग पीपल एंड सी देम एज वेल। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों आया गाइस, बिकॉज नाउ गाइस दे आर अनअवेयर ऑफ द रेगुलर वर्ल्ड। सो दैट मीन्स जब हम इंसान लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं, दैट मीन्स हम अपने साथ ऐसे कई वायरसेस वगैरह भी लेके चले जाते हैं। नाउ गाइस ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस सामने आई है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इनके लिए और भी कई तरीकों से खतरा है। तो कल्चरली भी हम खतरा है इनके लिए, बट बायोलॉजिकली भी कई केसेस में हम इनके लिए खतरा हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि ऐसे कई, अब देखो मान के चलो एक अंडमान में एक ऐसी कोई ट्राइब रह रही है जो कि मेन स्ट्रीम वायरसेस और फ्लू से दे आर नॉट, देयर बॉडी इज नॉट नोन टू दैट। सो जब कोई ऐसा वायरस या बैक्टीरिया उस एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, तो वो उनकी बॉडी के लिए पहली बार होगा, और वो वैक्सीनेटेड है या नहीं, या वो फॉर एग्जाम्पल उससे इम्यून है या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा पास्ट में हो चुका है गाइस ना। उसके लिए थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। साउथ अमेरिका की एक सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्राइब थी, इनका सिविलाइजेशन, इनका कई हॉलीवुड मूवीज भी देखी होगी आपने। इनका सिविलाइजेशन में गोल्ड बहुत था और ये था वो था। इस इनका सिविलाइजेशन को इन्वेडर्स ने खत्म कर दिया। एक तो इनकी रिसोर्सेज पर कैप्चर करा कॉलोनलाइजेशन के टाइम पर। अगर आपको याद हो तो जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर था, सॉरी द वेस्टर्न हेमिस्फेयर था, उस पर जो कंट्रोल था वो पोर्टुगीज का था और स्पेन का था। ठीक है, ज्यादातर इसमें स्पेनियर्ड्स थे। ठीक है, स्पेनियर्ड्स से जिनका कल्चरल वो हुआ। तभी आप देखोगे ब्राजील, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी ब्राजील एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज, मैक्सिकन कंट्री, मैक्सिको एंड ऑल, ये पूरे रीजन में जिसको लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है, स्पेनिश भाषा बहुत बोली जाती है। ठीक है, वो उसके पीछे रीजन यही है कि वो इन्वेजन हुए। तो उस इन्वेजन के साथ ऐसे कई वायरसेस वहां इंट्रोड्यूस करे गए। चूहे उन्होंने कभी नहीं देखे थे, वो सब वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिए गए। अब आप कहोगे चूहे कैसे पहुंच गए? सर वो बड़ी बड़ी शिप्स वगैरह में जाते थे। अब बड़ी बड़ी शिप्स वगैरह में चूहे भी इधर उधर छुपाते जा सकते हैं, और जैसी शिप वहां डॉक हुई तो वो चूहे भी वहां उतर सकते हैं। तो वो चूहे अपने साथ कई बैक्टीरिया और वो सब ले गए। तो ऐसे बायोलॉजिकल कॉलोनियलाइजेशन के थ्रू भी कई सिविलाइजेशन हमारे वर्ल्ड से वैनिश हो चुकी है। तो सेम आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर इन ग्रुप्स के साथ भी। तो इनके लिए अभी हुआ क्या है, 56 इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रेट अंडमानीज ट्राइब हैज बीन फाइंड आउट टू बी पॉजिटिव फॉर कोविड। ठीक है, सो दिस आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज सिंस रैम्प्ड अप द टेस्टिंग अमंग द ओंग एंड लिटिल अंडमानीज एंड द ग्रेट अंडमानीज एंड जरावास। ये कुछ वहां की ट्राइब्स हैं जो वहां पर रहती हैं, और इन ट्राइब्स पर ये क्या बोलते हैं, कोविड टेस्ट वगैरह गवर्नमेंट कर रही है ताकि इनको प्रोटेक्ट करा जा सके। ठीक है, तो इसलिए ये अगस्त में न्यूज में आया। उसके बाद गाइस अब मैं आपके लिए कुछ फैक्चुअल चीजें लेके आया हूं जो कि गवर्नमेंट के किसी ना किसी इनिशिएटिव से रिलेटेड है। सो अगला जो टॉपिक है वो है निंजा यूएवी। ठीक है, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ड्रोन है। आजकल अपने ड्रोन बहुत कॉमन हो गए हैं, हर कोई उड़ाने लग रहा है ड्रोन को। ठीक है, यूट्यूबर्स अक्सर आपको ड्रोन उड़ाते मिलेंगे। हाउएवर आई एम ऑल्सो अ यूट्यूबर नाउ, सो मैं ड्रोन से पढ़ाई कराता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, तो इसलिए हम सिर्फ पढ़ाई में बात करेंगे ड्रोन्स की। सो दे आर एस्टैब्लिशिंग अ ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम बाय हुम? इंडियन रेलवेज। सो सबसे पहला क्वेश्चन, निंजा यूएवी यूज कौन करता है? इंडियन रेलवेज। ठीक है, सो ये ड्रोन के अंदर कैमरा होगा दैट कैन कवर अ लार्ज एरिया दैट विल रिक्वायर 10 आरपीएफ पर्सनल। ठीक है, ये 10 आरपीएफ पर्सनल इसको कंट्रोल करेंगे। इट विल हेल्प टू इंटेंसिफाई द सिक्योरिटी मैकेनिज्म अक्रॉस इट्स एरिया। नाउ दिस एक्सरसाइज में लीड
2, substantial improvement in the utilization of the scarce manpower, set a note on the drone surveillance issued by the ministry. ठीक है, सो पहले ही मैन पावर कम है, तो एक प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए ये ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हेल्प करेगा इंडियन रेलवेज को. ठीक है, सो निंजा ड्रोन. इसके बाद गाइस ऐसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके एफकैट जैसे एग्जाम में बहुत आ जाते हैं, एनडीए में बहुत आ जाते हैं, सीएपीएफ में, सीडीएस में भी आ सकते हैं. अगस्त महीने में इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे, जिसे उड़न खटोला भी बोला जाता है हिंदी में, इंडिया's longest ropeway has been launched. It will be the country's longest ropeway which will be launched in Guwahati. ठीक है, गुवाहाटी को मिला है longest ropeway in India. ठीक है, सो अगर आपके शहर में भी कोई रोपवे है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. सो दे कनेक्ट, इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ब्रह्मपुत्र. 1.8 किलोमीटर का, लगभग 2 किलोमीटर का लंबा ये रोपवे है. ठीक है, so this is traveling time between bring down the traveling time between the North Guwahati and the central part of the city to 8 minutes. यानी 8 मिनट में आप सिटी को टच कर सकते हो, तो टाइम सेविंग होगा ये वहां के लोगों के लिए. ठीक है, ब्रह्मपुत्र गाइस उस रीजन में बहुत चौड़ी है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे लंबा पुल भी ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना हुआ है. ठीक है, द लॉन्गेस्ट ब्रिज, कहां गया, द लॉन्गेस्ट bridge in Asia is constructed over this region. ठीक है, on लोहित रिवर. ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है लोहित, उसका नाम क्या है जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. ठीक है, लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा पुल है वो, दुनिया एशिया का सबसे लंबा पुल है. सो इट वाज लॉन्च्ड इन आई गेस 2018. सो जीके फैक्ट्स, एफकैट वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. इसके बाद अगला है इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड फेयर. सो ऑल वुमेन ट्रेड फेयर भी लॉन्च कर दिया गया है. कहां पर, अग्गामली केरला में. सो जगह बस इंपॉर्टेंट है. क्या काम करेगा ट्रेड फेयर आपको भी पता है. इट विल हेल्प टू एक्सेलरेट द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी वुमेन बिजनेस, वुमेन एज अ बिजनेस ओनर, और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च करा गया है. To secure the gender parity while providing the women with safe place to start a new business and get their products and marketed globally. ट्रेड फेयर का आपको यूज पता ही है, बहुत सारी कंपनीज आती है, इन्वेस्टर्स आते हैं, दे इंटरैक्ट, दे साइन अप द डील्स इन द बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, अच्छा, इसके बाद इसरो को मिला है एक नया क्रेटर, जिसको नाम दे दिया गया, क्रेटर मतलब एक गड्ढा, एक हॉलो स्ट्रक्चर, जो कि मुझे साइंस एंड टेक में कवर कर देना चाहिए था, बट ठीक है, अभी भी हम गवर्नमेंट स्कीम्स कर रहे हैं, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया इस पॉइंट को ताकि मिस ना हो जाए, मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये. इसको नाम दिया गया है साराभाई क्रेटर के नाम से. ठीक है, ये चंद्रयान 2 मिशन ने डिस्कवर करा है. मैंने आपको बताया था चंद्रयान 2 के बारे में, बहुत बार मैंने बता रखा है. थोड़ा सा विक्रम साराभाई, द ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, द जेम ऑफ इंडिया, इसके बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL इन्होंने लॉन्च करा अहमदाबाद में 1947 में. ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ अटोमिक एनर्जी कमीशन. ही प्लेड अ की रोल इन एस्टैब्लिशिंग इसरो. इसरो जो आज अपने छाती चौड़ी करे खड़ा है, तो आप कह सकते हो कि लेग्स वर्कआउट इन्होंने करा था. ही इज द बैकबोन, ही वॉज द सपोर्ट सिस्टम हु स्टार्टेड द फाउंडेशन ऑफ इसरो. एंड सी हाउ ISRO is now gathering the name not just in India but all across the world. There are so many important events that ISRO has achievements I would say. So he is the father of Indian space program. He was awarded Shanti Sarup Bhatnagar Award, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, both the awards he has been conferred with. Okay, so this was all about Vikram Sarabhai. So guys, इसके बाद the last topic for today's discussion is national education policy. I have already dealt with this national education policy in detail many a times when we बहुत सारे आपके GD भी कराए थे when I was working with an academy. However, I am not right now. This is my own venture. But don't worry, I will be planning to launch those GD sessions, SSB sessions very soon. But for that, guys, I will be needing some support from your side. सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना. जिसने अभी तक इस वीडियो को देखा है, दैट मीन्स यू लव माय वीडियो, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. ठीक है, सो कर्नाटका हमारे देश की पहली स्टेट बन गई है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है.
ठीक है। सो यहाँ पर ये फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हाउएवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है। देयर इज नो पॉइंट टू रिपीट इट। हाउएवर इन फ्यूचर आई विल रिपीट इट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, रिपीट द एक्सप्लेनेशन in the form of a question or anything else. So guys, time now for the daily motivation. आपको पता है मेरा हर सेशन एक मोटिवेशन के साथ एंड होता है। आज का मोटिवेशन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम शब्दों में है। वर्क हार्ड, हैव फन एंड मेक हिस्ट्री। मेहनत कीजिए, अपनी मेहनत को एंजॉय कीजिए और हिस्ट्री बनाइए। ठीक है, ये इट इज नन अदर देन जस्ट सी हैविंग फन। इट इज सेड बाय द रिचेस्ट पर्सन on this planet Earth, that is Jeff Bezos. ठीक है, so इन्होंने ये कोट दिया है, so work on it. It is a very nice quote that I found on internet. ठीक है, so this is my Telegram channel, guys. Link is given in the description box. All the PDFs will be shared on this Telegram channel very soon. As soon as I will cover all the videos, I will share them. अच्छा, if you want those videos simultaneously, अगर आपको PDF भी साथ के साथ ही चाहिए, जैसे ही मैं वीडियो लॉन्च कर दूं और PDF भी साथ दे दूं, अगर आप ऐसा चाहते हो या कुछ भी आपको चाहिए तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। सो गाइस, इन रिटर्न आई वुड जस्ट से सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल द फ्यूचर वीडियोस। इस घंटे के बटन को दबा दीजिए, हथौड़ा देके मारिए इस पर, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, शेयर चैनल को भी कर देना और मेरे पूरी प्लेलिस्ट को भी कर देना। जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी आपको इंक्वायरी है डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी दिया है, यहाँ पर भी मेरे सारे लिंक्स, मेरे सारे कनेक्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर वैसे 2 ग्रुप है, एक डाउट्स ग्रुप भी है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे वहाँ पर भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, सो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए, सपने जरूर सच होंगे। टेक केयर एवरीवन।